started a clinic 1 week back only. We have been running meta. So major challenges, people are not trusting your process. तो इसके अलावा और क्या challenges है? मतलब ऐसा होता है ना 50 किलोमीटर से भी लोगों की लीड नहीं आ रही। So currently what are your numbers like? अभी आपका तो नया क्लिनिक है। एक दिन में एक पेशेंट होता है, ज्यादा नहीं होता। ओपीडी आपकी कितनी है? दिन की 2 है 3। 2-3 ओपीडी में एक प्रोसीजर ले रहा है? लेता है तो लेता है, नहीं तो नहीं लेता है। तो चलो मोटा मोटी मैं मान लूं एक ही पेशेंट आ रहा है और आपका प्रोसीजर अभी महीने के कितने कर रहे हो आप? अभी तो स्टार्ट किया है सर। तो ये जो आप बोल रहे हो कि पेशेंट कन्विंस नहीं हो रहा है, कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है, ये चैलेंजेस आपने कहाँ से पिक की? 30 कॉल्स आते हैं, हम उनको बोलते हैं, मेरा अटेंडेंट पूछता है एंड दे स्टार्ट कटिंग आवर कॉल्स। आपका क्या गोल क्या है विद दिस प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट 1 and 3 years? होलिस्टिक डेंटल जो हो रहा है, मुझे इसका एटलीस्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो भी पायनियर बनना है। आपको जहाँ पे पहुंचना है, यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम देयर। 2-2.5 करोड़ की प्रैक्टिस फर्स्टली अगर बढ़ानी है तो आप सोचो कि आज मैं इतना आदमी हूँ, मैं महीने का 10-20 लाख रुपए का बिजनेस मैच चल रहा है एटलीस्ट मेंटली। अब वहां से आप डिसीजन मेकिंग करो। ऐसा मार्केट है जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, वर्ल्ड कैन बी द मार्केट फॉर यू। आई एम ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग विद वन ऑफ माय ऑर्थोपेडिक सर्जन, लोकल मेडिकल टूरिज्म हैपनिंग बिकॉज ही प्रॉब्लम दैट इज सॉल्विंग इन करेक्टिव सर्जरीज। हो सकता है दूसरे डॉक्टर्स करें, बट जैसे उनकी पोजीशनिंग में, ही जस्ट 32 years old, बट लोग कहाँ से हजारों किलोमीटर से उनके पास आ रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल यू कैन हैव, बट उसके लिए पहले ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ब्रांड बनाना पड़ेगा। Basically, I am practicing holistic dentistry. Holistic dentistry, we can say, it involves mouth, mind, and body connections. So what we concentrate on is an interdisciplinary science, which in my city no one else probably do. How we try to do is we try to connect the dots as active pressure or active puncture does. They connect the dots of your hand with your complete body. Whether you have some breathing problem or ear problem, how they are related to your mouth. If you have any lifestyle disorder like blood pressure or diabetes, how does it is connected to your overall oral health, and how your oral health is connected to your overall health. So that is our focus on. This is called holistic science. Okay. And I also concentrate on oral pre-cancer. The thing is, when we talk about the cancer, say suppose there is a brain tumor or blood cancer, what happens is when you get the cancer, you only know it. But in mouth, it's not the case. In mouth, just like you say, what you get a fatty liver before having liver cirrhosis. In the same way, they get some type of pre-cancer, and after that, the oral cavity starts showing the signs of oral cancer. Apart from that, it's we all have heard that oral cancer starts from a small ulcer in the mouth. So that ulcer, when it doesn't heal for more than 21 days, it might convert into cancer. What clinicians do till now, that they have been giving medications, common medication with all that. Okay, but we have some new technology that is called optical biopsy. So these optical biopsies, we show some rays on the site, and then how the reflection is coming. Based on that, we see if the cell is active or inactive. If it is inactive, then it is going to convert into cancer. So in that, when even the stage 1 is not properly found, we just surgically remove that much area, like just a centimeter of area we remove that, and patient becomes free of cancer. Whereas if we keep on ignoring that, and if proper stage 1 is established, then that 1 centimeter area becomes 2-3 inch area. The patient had to undergo this biopsy. So the thing is, I am lacking behind in making these things aware to the patient around me, and I think the patients are not taking it seriously, or the conversion factor which is there, the convenience, how to convince them. That's why my footfall is low. One thing that I have recently shifted to a new city, we started a clinic 1 week back only. We have been running meta ads. My Instagram account is not active till now. So I just started with meta ads when I wanted to see, and I just happened to see your video. I thought that you might give me good guidance on how to do it. And if you also have a marketing agency, then you can also take it for. So we are a consulting and marketing firm. So one do that's my primary. Have you seen did my medium send you the video? I could not see it. So our video देखोगे, in that it is all about primary patient acquisition, conversion and retention. तो उसी पे है वो सारा वीडियो.
So front end is majority of the doctors का first problem वो होता है. Once that is solved, then the second stage would be now the patient flow is good. अब मैं अपने आप को कैसे फ्री करूँ, उसको स्केल कैसे करूँ. So that is the second part of like scaling up the operations. So everybody starts from that first part. So yes, marketing is part of it. And Meta ads आप बोल रहे हो, आप रन कर रहे हो. What are you running on Meta ads? And I can In regional languages हम पेशेंट को प्री कैंसर के बारे में बता रहे हो and I go and personally talk with many doctors that if we are talking about the lifestyle disorders like diabetes then I go and meet diabetologist, I go and meet cardiologist. क्या नाम है इनके पेज का? संजीवनी डेंटल एंड ओरल हेल्थ. SANJEEVNI. VANI हिंदी में है ये. कम रहते तो हम रीजनल लैंग्वेज में करते हैं. बेसिकली होता है कि बट ठीक है. तो इसके अलावा और क्या चैलेंजेस है? आई मीन वन इज द कन्वर्जन. मतलब ऐसा होता है ना सर कि देखिए अभी जैसे मेरे जिनसे मैंने सीखा है, ठीक है, अभी ये बात भी कि वो काफी फेमस है, सब कुछ है, बट आई सॉ पीपल ट्रैवलिंग मोर देन 1000 किलोमीटर्स पर व्हेन ही स्टार्टेड ऑफरिंग इट. ठीक है, और जब अभी मैं कर रहा हूँ ना तो मुझे ना ऐसा 50 किलोमीटर से भी लोगों की लीड नहीं आ रही. ठीक है, देखो क्या होता है, ऐसा वैसा. So currently what are your numbers like? So अभी आपका तो नया क्लिनिक है आई थिंक. इससे पहले क्या क्या आप अभी प्रैक्टिस करते थे आप एंटायरली डिफरेंट? इसके पहले मैं अपने यहाँ पे प्रैक्टिस करता था. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन टाउन, तो इट टुक अस ईयर टू कन्वर्ट 80 पेशेंट्स. ओके. अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक दिन में एक पेशेंट होता है, ज्यादा नहीं हो पाता. ओपीडी आपकी कितनी है? दिन की 2 है 3. 2-3 ओपीडी में एक प्रोसीजर ले रहा है, कन्वर्जन कुछ है? नहीं ले रहा. लेता है तो लेता है, नहीं तो नहीं लेता है. तो चलो मोटा मोटी मैं मान लूं एक ही पेशेंट आ रहा है और आपका प्रोसीजर अभी महीने के कितने कर रहे हो आप? अभी तो स्टार्ट किया है सर. तो ये जो आप बोल रहे हो कि पेशेंट कन्विंस नहीं हो रहा है, कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है, ये चैलेंजेस आपने कहाँ से पिक किया? 30 मुझे कॉल्स आते हैं मेरा मेटा एड्स के थ्रू. 30 कॉल्स आते हैं, हम उनको बोलते हैं, मेरा अटेंडेंट पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है, कब से तकलीफ है, आपने इसके ऊपर कुछ इलाज करवाया है कि नहीं, ये पूछते हैं. एंड दे स्टार्ट कटिंग आवर कॉल्स. फॉलोअप के लिए कॉल लेते तो दे स्टार्ट कटिंग आवर कॉल्स. आपका क्या गोल क्या है with this practice in the next 1 and 3 years? मतलब I want to be recognized that I want to be recognized as this holistic dental जो हो रहा है ना, holistic oral health, मुझे इसका एटलीस्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो भी पायनियर बनना है. What have you tried? I don't know where is my starting point. Where should I start? You can start now. Phone निकालो, start talking, upload. But we are running meta ads and we are not seeing any response, so my confidence is low on that. See, there are two different things what we are talking about. Meta ads आप रन कर रहे थे किस पर्पज से कि पेशेंट इंक्वायरी जनरेट हो, करेक्ट? अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज कि अपना क्या कि नाम हो, इसके अंदर अवेयरनेस बढ़े इस चीज में, करेक्ट? इससे कुछ लेना देना ही नहीं. ये तो काम आप क्या कि नथिंग इज स्टॉपिंग यू, इट्स अ मेंटल ब्लॉक व्हाट आई कॉल. आप चाहो तो आज से एजुकेट करना अभी से. इनफैक्ट आफ्टर दिस कॉल यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो वो एक चीज हो गई. ठीक है. अगेन द गोल, अगेन जो आप बोल रहे हो, इट्स अ वेरी वेग गोल. ठीक है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है, इट्स लाइक दैट. कितना बड़ा अब मेजर कैसे करो, राइट? कि एग्जांपल मेरे लिए बड़ा आदमी बनना हो सकता है मेरे बैंक अकाउंट में 100 CR हो, या फिर मेरा एक यूट्यूब चैनल हो जिसपे क्या कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो. देयर आर सम पोटेंशियल मेट्रिक्स what you can through which you. So I don't count it by money. I would count it by a baby day of at least 30 to 40 patients in a day. हाँ, OPDs के थ्रू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. और कितने प्रोसीजर्स हम एक्सपेक्ट करेंगे फिर? In a day I can do 20-25 patients. तो आपको प्रैक्टिस करते कितना टाइम होगा? It's been this holistic dentistry or overall dentistry? In general overall 4 years. 4 years हो. In holistic dentistry में 6 to 7 months. 6 to 7. तो पहले आप जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो थिंग्स वर गुड. आई मीन लाइक हाउ वर यू डूइंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और what kind of ROI that you were drawing? 2-2.5 लाख रुपए में. But your primary driver is कि इस particular field में मेरे को जो है काम करना है. Your why is basically what you have experienced personally. See, ये क्वेश्चन ये क्यों पूछ रहा हूँ is इतने डेंटल क्लिनिक्स को मैं कंसल्ट कर रहा हूँ ना, you know like how is the market right now for dental guys. वहां का पता नहीं, बट इट्स वेरी टफ करेंटली. जितना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है डेंटिस्ट्री में, उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा. फाइन.
So why do you think your meta ads are not working? And आपका क्या प्लान है कि to overcome on this कि अब अगर आपको इसी में करना है and grow करना है तो what are you thinking? नहीं, अभी तो देखिए मैं सोच रहा था कि जितने मेरे पेशेंट्स है, कुछ अभी पेशेंट है, एक 10-12 पेशेंट चालू है, उनके प्रोसीजर करते हुए मैं कुछ ये डालूं, बिफोर आफ्टर डालूं। तो क्यों नहीं कर रहे हो? What is stopping you from doing that? यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो एक्चुअली आई जस्ट टुडे ओनली आई गॉट अ फ्लैट और मेरा अप डाउन हो रहा था, तो आई हैव टू गिव टाइम टू माय क्लिनिक. What I planned is morning 8 to evening 10, and but I put sit only morning 12 to evening 6 p.m. वो 6 घंटा भी नहीं बैठूंगा कि 2-3 पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट का आने का पता नहीं है. तो एक बार वो सॉर्ट हो जाए तो उसके बाद में आई कुड फिक्स टाइम ईच एंड एवरीथिंग. तो एज अ कंसल्टेंट मेरे को पॉजिटिव भी देखना है, नेगेटिव भी देखना है. तो मुझे ये आप बताओगे कि इफ थिंग्स आप जो प्लान करो नेक्स्ट 1 to 3 years में, इफ दे पुशिंग, अगर वो वर्कआउट हो गया ठीक, अगर नहीं हुआ तो एनी पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस यू नहीं हुआ तो क्या, रेगुलर डेंटिस्ट्री तो करनी है, रेगुलर डेंटिस्ट्री में थोड़ी ना हमको रोकना है. I have enough packing to wait and watch for 5 to 6 months. If it doesn't work out, then I will start advertising normal dentistry. तो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले तो 5 से 6 महीने जो हमने अभी लास्ट टाइम बोला ना, इट्स नॉट गोना वर्क. सिंपल लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको. मार्केट में आप एक मान लो नया चिप्स का पैकेट भी लॉन्च हुआ है, ठीक है. आजकल नए ब्रांड्स आ रहे हैं शार्क टैंक पे, इतने अलग अलग क्या की लक्ष्य सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 5 से 6 महीने में बिग शॉट हो जाऊँ, बट आई शुड बी अर्निंग गुड इनफ टू सर्वाइव हियर ऑन द अर्निंग ऑफ दिस क्लिनिक ना. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरा यहाँ पे देखो सर्वाइव करने के लिए मुझे महीने का 1 लाख रुपए लगता है, तो वो तो आए कम से कम 5 से 6 महीने में. तो आदमी और हिम्मत करके पैसे डालेगा ना इस चीज के ऊपर. मैं कुछ ही नहीं कमा रहा हूँ, मैं 10-20 हजार रुपए कमा रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ लाखों, तो क्या फायदा. कम से कम ब्रेक इवन तो आना चाहिए. आप ये बोल रहे हो कि हिट सुपर हिट बनने में 1 साल 1.5 साल लगे, दैट इज डिफरेंट थिंग. ब्रेक इवन तो है, सेल्फ सस्टेन तो रहे प्रैक्टिस. मैं उसका भी जवाब आपको दे पाता अगर मेरे पास कुछ रफ नंबर्स होते. तो मैं एज यू टेलिंग कि ये नया क्लिनिक है, नया सेटअप है, बट यूजुअली जो मैं देखता हूँ, और मारवाड़ियों में कहावत है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दो, मिनिमम 3 साल 1000 दिन लगाते हैं. हाँ, 3 साल गल्ले पे बैठना है. उसके पहले आप क्विट करोगे तो खत्म. मतलब वो मतलब ही नहीं है, फिर आप चालू ही मत करो, ठीक है. तो आया हूँ मारवाड़ी गाय, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कुछ. मैं सिंधी हूँ तो थोड़ी बहुत टीचिंग मेरी भी वैसी दी हुई है. बढ़िया. So coming back to now, I've seen this happening repeatedly. इसलिए देखो बीच में ना आप काफी मार्केटिंग एजेंसी से डॉक्टर्स स्कूल भी हुए. जैसे मेरे भी कुछ क्लाइंट्स थे, तो उनको ऐसे कुछ प्रॉमिस कर दिया, हम 30 इम्प्लांट्स लाके दे देंगे आपको 30 दिन में. तो दे गॉट सोल्ड फॉर इट एंड पीपल मेड मनी. दे गॉट स्कैम. व्हाई दे गॉट स्कैम? लालच. ठीक है कि हम आपको 30 इम्प्लांट लाके दे देंगे. उन्होंने मान भी लिया. जो डॉक्टर 50,000 एफर्ट नहीं कर पा रहा था मार्केटिंग, उसने 2-2 लाख रुपए दिए. ठीक है. That is how people are playing around with it. बट यहाँ पे अगर आप सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओगे, कोई, मैं वही बोलता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए, मतलब एक आदमी के माइंड में रजिस्टर होने के लिए, मतलब अगर मान लो मैं एंड IPP हूँ, आइडियल पेशेंट प्रोफाइल जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पहले मैं डॉक्टर नीरज को देखूंगा, आज देखूंगा, मेरे को प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, ठीक है. मैं 3-4-6 महीने के बाद मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैं कंसिडर करूंगा. मेरे को क्या कि घर में मेरे आसपास में मुझे पेन दिख रहा है रिलेटेड टू व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, देन मैं कंसिडर करूंगा. देन उसके बाद मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगा, मैं भी क्या कि धीरे से आपसे अपॉइंटमेंट लूंगा. फिर कन्वर्जन कुछ तो ऐसे साल मेरे बाद भी होते हैं. और मैं ये नहीं बोल रहा सबका ये प्रोसेस है, कुछ हो सकता है इमीडिएटली भी कन्वर्ट हो जाए, राइट. इट्स अ प्रोसेस. प्रॉब्लम इज कि पीपल ओवर एस्टिमेट कि व्हाट कैन हैपन इन द 3 to 6 months एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट कैन हैपन इन द नेक्स्ट 1 to 3 years. ये प्रॉब्लम है with the doctors. What I've been working very commonly. मैं बताऊँ, आप 10 साल MBBS करो, मास्टर्स करो, सब करो, आप 3 साल क्या कि टिका के अगर क्या कि अपने आप को मार्केट में सस्टेन कर पाओ, 3 साल, ठीक है, which is hardly any cost to you. जो ROI इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इस फील्ड में, ROI is not a challenge. Whatever money you pour into these kind of things, you make your money back. So आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है. बट 3 साल आप कंसिस्टेंट रहोगे. जो आज डॉक्टर है, जो 30 साल जिनको लग गया प्रैक्टिस बनाने में, you'll be at power to that. That is the power of, you know, modern marketing tools like social media and ये सारी चीजें. तो ये समझना बहुत जरूरी है. आप 6 महीना करोगे, ठीक है, वो कंसिडरेशन स्टेज तक जाएगा लोगों के आसपास में, ठीक है. नो, यू टेल मी, आपने बोला 30 इंक्वायरीज आ रही है,
आप मुझे लगता है कितना कर रहे हो, 500,000 रुपए खर्चा कर रहे होगे अपने एडवर्टाइज में, एड स्पेंड में। 200 रुपये। 200 रुपए आप खर्चा कर रहे हो अपना अपना आप सिंपल एक बताता हूँ कैलकुलेशन। एवरेज पेशेंट वैल्यू क्या रहेगा? एवरेज पेशेंट वैल्यू माने कि रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट यू आर सीइंग इन अ मंथ। ओके, एंड एवरेज पेशेंट जो भी आपके पास वॉकिंग कर रहा है कि वो एवरेज इतना खर्चा करेगा। मुझे लगता है इन एनी गिवन फील्ड मिनिमम 10,000 रुपया तो रहेगा in any medical field. In your field, what you are planning to do, I think it's more premium. Okay, तो cost per acquisition आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 200 रुपया यानी 6,000 रुपया आपने खर्चा किया, आप कैसे प्रैक्टिस बिल्ड करोगे? 6,000 में तो आपका कैक भी नहीं निकलेगा ऑफ द काइंड ऑफ पेशेंट दैट यू आर ट्राइंग टू टारगेट। सी कैक आप समझते हो, कॉस्ट पर एक्विजिशन। अरे बट सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास तो ये तो आ रहा है ना, मतलब क्या आप 200 रुपये पर पेशेंट बोल रहे हो क्या? 200 रुपए पर डे का बजट लगा रहे हो ना? हाँ 200 रुपये पर डे का लगा रहा हूँ मैं। 200 पर डे का लगा रहे हो, एंड 200 पर डे का लगा रहे हो तो आपकी मार्केटिंग एजेंसी मोटा मोटा जो आपके पास है तो शायद आपसे 10-20 हजार रुपए चार्ज कर रही हो। 3,000 रुपये महीने का। नहीं तो ये देखो वही चीज हो गई ना, माइंडसेट नंबर 1। तो अपने को बिल्ड करना है प्रैक्टिस जहां पे अपने को 30 ओपीडी चाहिए पर डे, ये पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, और अपने को अच्छे कन्वर्जन चाहिए। मोटा मोटा हम कोशिश कर रहे हैं एक 10 से 20 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू टारगेट करने का। ठीक है, मान लो हम 2-2.5 करोड़ का क्या कि अगर हम प्रैक्टिस बनाना चाह रहे हैं, उसको हम इस लेवल पे क्या कि सी एक कॉन्सेप्ट है, आपको जहां पे पहुंचना है यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम देयर। ओके, यू डोंट स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम वेयर यू आर। तो अगर आपको क्या कि 2-2.5 करोड़ की प्रैक्टिस फर्स्टली अगर बढ़ानी है तो आप सोचो कि आज मैं इतना आदमी हूं, मैं महीने का 10-20 लाख रुपए का बिजनेस में चल रहा है एटलीस्ट मेंटली। ठीक है, अब वहां से आप डिसीजन मेकिंग करो कि अगर मैं अभी इतनी प्रैक्टिस रन कर रहा हूँ, आज मेरा क्या कि 15 लाख रुपए का महीना रेवेन्यू चल रहा है, तो मैं कैसे रन करूंगा अपनी प्रैक्टिस को यहाँ से स्केल करने के लिए? दैट शुड बी फर्स्टली एक मेंटल मैपिंग जो बोलते हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, थिंकिंग पैटर्न में आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले ये पर्टिकुलर तरीके से आपका स्केल नहीं हो, मल्टीपल रीजन है। बिकॉज अभी जो एजेंसी है 3,000 रुपए में उसको 2 ऑपरेशन आता है। अभी जो क्रिएटिव देखा वो देख के में समझ में आया, वो ब्रांड नहीं समझेगा, आपका ट्रस्ट कैसे मार्केट में बनाना है वो नहीं समझे। ठीक है, उसके लिए दिमाग चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। ठीक है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा सर उनसे, मुझे मालूम है 3,000 वाला क्या करके देगा जी। तो मैंने उन्होंने मुझे बोला क्या करके कि सर हम बाकी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट वो बहुत ही बेसिक सी है। वो बेसिकली एक कॉलेज गोइंग लौंडा है जो मेरे लिए जो है खाली मेटा एड डाल के दे रहा है मेरे को। ठीक है, द थिंग इज ना कि मैंने ये स्टार्ट अभी के लिए किया ताकि कुछ तो रिस्पॉन्स आए। अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, तो कुछ तो है। तो जब दिन का एक आ रहा है, जब तक मुझे कोई प्रॉपरली एजेंसी नहीं मिलती कि जिनके साथ में मैं प्लान बना सकूं, दैट इज जस्ट अ टेम्पररी थिंग सर। आई गॉट इट। आई डोंट प्लान टू कंटिन्यू दैट। नहीं, होता क्या है, क्या बोलते हैं, एक फेक सेंस ऑफ मार्केटिंग में जीने लगते हैं क्लिनिक ओनर्स की, यार मार्केटिंग तो चल रही है। अब जिनकी बात करें डॉक्टर हर्षप्रीत, तो हर्षप्रीत भी बिफोर 1 साल पहले जुड़े थे वो। हर्षप्रीत वाज आल्सो, मतलब ही इज रनिंग अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उनकी एक छोटी एजेंसी थी 20-30 हजार रुपए की, बट वो काफी सालों से चलाते हैं। मैंने पूछा सर क्यों चला रहे हो आप? नहीं, मौका ही नहीं मिल रहा। वो कुछ तो चलना चाहिए, वो कुछ तो चल रहा है बस। वो ही इज इन द सेंस की मार्केटिंग चल रही है, कुछ तो चल रहा है, बट कुछ चल नहीं रहा एक्चुअली। समझ लो, आ रहा है कुछ नहीं है, वो आप खुद के पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो। तो वो दैट फेक सेंस क्या करता है कि आपको एक्चुअली जो एफर्ट लगाना है वो क्या कि उससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आप बिजी हो जाते हो। अभी आपको रियलाइज हो रहा है बिकॉज अभी हम करेंटली उतने बिजी नहीं है, इस पर्टिकुलर सेंटर पे नहीं है। जो बिजी डॉक्टर होता है उसको तो लगता है भाई बिजी चल रहा है, चलने दो। तो देयर इज नो प्रॉपर कैलकुलेशन। सो व्हाटएवर यू आर इन्वेस्टिंग, जो भी 3-4 लाख रुपए भी साल का, वो भी बेकार ही है। इट इज नॉट हेल्पिंग यू ग्रो। दैट इज वेयर द चैलेंज कम्स। डेफिनेटली ट्रस्ट का जो आप पॉइंट बोले हो, इसके अंदर लगेगा, बहुत सारा ट्रस्ट लगेगा। बिकॉज व्हाट यू आर टेलिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे पता भी नहीं था जो आप बोल रहे हो। ठीक है, आई मीन आई मेट कार्डियोलॉजिस्ट जो क्या कि कुछ तो अपना दे ऑल्सो हैव देयर अदर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को मिक्स करके वो डॉक्टर हील कर रही। तो मैंने अलग अलग डॉक्टर से मिला, बट इस टाइप की चीज जो आप बोल रहे हो, स्पेशली दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि नॉन सर्जिकल तरीके से ये इंडिया में जो क्या कि जिन्होंने टोबैको छोड़ दिया है या जिन्होंने, तो ये तो क्या कि ऐसा मार्केट है जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, वर्ल्ड कैन बी द मार्केट फॉर यू। ओके, सो मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, ये समथिंग अगर इफ यू गुड एट इट, सोशल मीडिया पे अगर कोई ज्यादा आपका कॉम्पिटिटर है नहीं, पीपल कैन फ्लाई एंड गेट ट्रीटेड। सो दिस आई एम ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग विद वन ऑफ माय ऑर्थोपेडिक सर्जन्स।
Okay, local medical tourism happening because his problem that he's solving in corrective surgeries. So हो सकता है दूसरे डॉक्टर्स खड़े बैठे थे, उनकी पोजीशनिंग में, जस्ट 32 years old, बट लोग कहाँ से हजारों किलोमीटर से उनके पास आ रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल यू कैन हैव, बट उसके लिए पहले ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ब्रांड बनाना पड़ेगा. अब आप ब्रांड कैसे बनाओगे? डेफिनेटली फर्स्ट प्राइमरी टूल विल बी सोशल मीडिया. ठीक है, सोशल मीडिया में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू कंसीडर. ऐसे नहीं होगा कि जो आप बोल रहे हो ना कि मैं बिफोर एंड आफ्टर डाल दूंगा, इट्स नॉट गोना वर्क. आपका कंपटीशन जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो, योर कंपटीशन इज नॉट इवन अदर डॉक्टर, योर कंपटीशन इज ऑल द एंटायर कंटेंट क्रिएटर्स ऑन सोशल मीडिया. आप खुद सोचो, रील्स आप देख रहे हो, हजारों रील्स आप देख रहे हो, सबसे पहले बंदा रुक के आपकी रील देखेगा. तो जो कंटेंट बनाने में जो सेंस जाना चाहिए, जो क्या कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट तो बाद में पिच करोगे, पहले तो उसका अटेंशन ग्रैब करना, वो समझना पड़ेगा उसको. अटेंशन ग्रैब करने का, अटेंशन तो कुछ भी करके आप ग्रैब कर सकते हो, बट वो रेस्पेक्टफुली फिर ट्रस्ट भी क्रिएट करना टुवर्ड्स द डॉक्टर, राइट? सो दीज आर ऑल द साइकोलॉजिकल पार्ट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ आप एक वीडियो से क्या फील करवाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो. देयर सो लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनटू इट. सो फॉर दैट यू डेफिनेटली, दो तरीके अब इसके अंदर. You need to hire a good content agency or something who can help you in presenting that way. But second thing, what you can also do is you can learn it by yourself. You can join some programs or join some consulting programs. उसके अंदर आप सीखिए खुद से क्या कि अगर आपके पास टाइम है, आप एफर्ट लगा सकते हो, आप खुद से क्या कि ये चीज कर सकते हो. ठीक है, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न बिकॉज पता होगा काम तो आगे जब आप एजेंसीज वगैरह को क्या कि जब हायर भी करोगे तो वहां पे भी क्या कि आपकी हेल्प रहेगी, बिकॉज देन यू विल नो कि व्हाट गोज इनटू इट, राइट? अभी मार्केट में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर्स को बेचारों को पता ही नहीं है कि करना क्या है. तो कोई एजेंसी आके कुछ बोल रही है, कोई एजेंसी आके कुछ बोल रही है, कभी कुछ ने कुछ बोल दिया तो वो कुछ करने लग गए, कुछ और बोलने लग गया, कुछ और करने लग गए. सो दिस इज ऑल्सो हाउ डॉक्टर्स आर गेटिंग प्लेड. तो थोड़ा बहुत खुद से क्या कि आप सीखोगे तो वो भी एक फायदेमंद चीज रहेगी. दिस इज द सेकंड थिंग. तो ट्रस्ट आपका बनेगा थ्रू सोशल मीडिया. केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है, बट केस स्टडी को आप कैसे प्रेजेंट करते हो ऑन सोशल मीडिया, हाउ विल यू इंश्योर दैट पीपल वॉच योर वीडियो, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज विल बी द थिंग्स. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दीज विल बी योर मेजर हैंडल्स, इस पे आपको फोकस करना है फॉर नाउ. यूट्यूब से होगा क्या, लॉन्ग टर्म क्या कि आपका बेस बनेगा. ठीक है, कोई भी सर्च कर रहा है लोकली जहाँ पे सिचुएटेड हो, तो यूट्यूब इज समथिंग आज आपने बना दिया, 10 साल के बाद भी आपको लीड ला के देगा. So YouTube is there. Instagram is like a fast growing platform. So it will get you जल्दी से क्या कि ट्रस्ट वगैरह बनने में हेल्प करेगा. बट ये सब मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम आप टाइम स्पैन पकड़ के चलिए 1 साल. 1 साल के पहले गिव अप नहीं कर. ये मैं जो बोल रहा हूँ आप करोगे 100%, यू विल सी व्हाट आई एम मतलब जो अभी आप अचीव करना चाह रहे हो ना वो होगा. आप 6 महीने करोगे, वो मैं अपफ्रंट बोल रहा हूँ. इट्स लाइक बिल्डिंग बॉडी. मुझे आप बोलोगे 6 महीने में मेरे को 6 पैक चाहिए, पक्का नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं. 3 साल में चाहिए, 100% होगा. डाइट फॉलो कर, रोज जिम जा, 100% 6 पैक ही मिला. सो इट्स द सेम लॉजिक. दैट थिंग इज सॉर्टेड. ये 2 चीजें आपने टिक कर ली. देन स्टेज 2. हाँ, उसके पहले आईपीपी जो बोलता हूँ, आइडियल पेशेंट प्रोफाइल, आपको मैप आउट करनी पड़ेगी. किसको आप टारगेट कर रहे हो. अभी जिस टाइप का टारगेट ऑडियंस आप किसको टारगेट करो, हुई जो टारगेट ऑडियंस. मुझे ये आप बोल रहे थे, ये भी समझ में नहीं है, ये भी डाउट आया है कि आइडियल पेशेंट प्रोफाइल इस चीज में जो टोबैको खाने वाले हैं, ये कहाँ से मुझे एल्गोरिदम ढूंढ के देगा. अगर मैं बोलूँ कि एक बंदा है जो क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड है, तो वो क्रिकेट का कुछ ना कुछ देखता होगा, ये एल्गोरिदम वो निकाल के मुझे वहां पे टारगेट करके दे देगा. कोई स्टूडेंट है मेडिकल का, वो मेडिकल की रील देखता होगा, उससे निकाल के दे देगा. ये साला कोई रजनीगंधा खाने वाला या R&D खाने वाला ये थोड़ी ना इंस्टाग्राम पे बैठ के देखता होगा कि रजनीगंधा है हमारे, कहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करता होगा. तो ये मुझे इंटरनेट कहाँ से टारगेट करके देगा मेरी आइडियल पेशेंट जो प्रोफाइल है जिसको टोबैको खाने की. आप गलत आईपीपी वही बोल रहा हूँ ना. यहाँ पे मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, अब आईपी ऑल्गोरिदम तो निकाल के दे देगा. अभी एग्जाम्पल मेरी रील है, अब तक पहुंची ना डॉक्टर कितने होंगे, वो हो सकता था. नहीं सर, तो मैं वही बोल रहा ना, क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ. कोई टोबैको खाने वाला सर्च थोड़ी ना कर रहा है टोबैको के बारे में. टोबैको खाने वाला सर्च नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल क्या कि मेरे कुछ फ्रेंड्स है, ठीक है, वो वेपिंग करते हैं. बीच में क्या कि बहुत क्या कि वी हैड दिस डिस्कशन कि अब छोड़ देना चाहिए वेपिंग, ये वो सारी चीजें. तो हमको क्या कि काफी सारी वेप से रिलेटेड रील्स आनी शुरू हो गई. तो आई टेल यू हाउ सोशल मीडिया इज आल्सो वर्किंग. नथिंग इज प्राइवेट राइट नाउ. अब जो अपन डिस्कस कर भी रहे हैं ना, अगर किसी की रील ने बोल दिया अब क्या कि पान गुटखा छोड़ दो यार, ये वो भी मोबाइल कैप्चर करेगा, समझो. फिर आप देखना वही नहीं दिखेगा. तो आप ऑल्गोरिदम छोड़ो, ऑल्गोरिदम अपने से बहुत एडवांस है.
आप टारगेट किसको कर रहे हो वो आप पिक करो। आपके केस में टारगेट ऑडियंस डायरेक्ट रजनीगंधा खाने वाला नहीं रहेगा, आइडियल ऑडियंस रहेगा। उनका क्या कि हो सकता है 25-30 साल का लड़का है, वो 60 साल का आदमी है, वो तो समझेंगे नहीं। इसको ऊपर क्या चाहिए कि मेरा बाप भाई क्या कि अपने आप पे काम करे, ये सब चीजें नहीं करे। सो योर टारगेट ऑडियंस वुड बी वाइज अगेन, जो अपने पति का सिगरेट टोबैको छुड़वाना चाह रही है, तो क्या कि तो इनके थ्रू क्या कि दे विल ब्रिंग देम। ओके, एंड देन थर्ड डेफिनेटली थर्ड आईसीपी इज डेफिनेटली जो लास्ट स्टेज में जो खुद से काम करना चाह रहा है, जो निकोटेक्स के च्युइंगम ले रहा है, जो क्या कि कोशिश कर रहा है कि मेरे को क्या कि ठीक है अब छोड़ना है, जिसके अंदर थोड़ा सा विल पावर ज्यादा है करने का। तो आईसीपीज आपके 2-3 है, वो मैप आउट करना पड़ेगा एंड फिर उसके हिसाब से क्या कि देन कंटेंट आपको ड्राइव करना है। ठीक है, इनके पेन पॉइंट समझते हुए देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, उनके बिलीफ सिस्टम्स को कैसे आप ट्रांसफॉर्म करोगे, कैसे समझाओगे। तो इट्स गोना बी अ जर्नी इन इटसेल्फ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, एक साल में इसलिए बोल रहा हूँ, एक साल में आपको खुद को काफी चीजें सीखनी पड़ेगी। अभी तो पता नहीं आप कैमरा के सामने कैसे हो, कितने प्रेजेंटेबल हो। आप हो सकता है क्या कि आप 1 महीने में बहुत अच्छे हो जाओ, फिर हो सकता है आप चीजें सीखते 3-4-6 महीने उसी में लग जाए, राइट? You're quite young, I mean 4 years into the practice, so you have long way to go. तो 1 साल तो आप आराम से दे सकते हो। So this is the second thing. Once this will start happening, then the meta ads, Instagram ads, local ads come into the picture. Why? Because social media पे will get scattered viewership. Okay, कोई हो सकता है आप अभी महाराष्ट्र में हो, कोई हो सकता है आपको कश्मीर से देख रहा है, कोई कन्याकुमारी से देख रहा है, right? How do you jot down the attention to the periphery? आपके पास पेशेंट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स कहाँ से आएगा? आपके आसपास के 5-10 किलोमीटर से आएगा, राइट? वो 5-10 किलोमीटर को स्पेसिफिकली आपको टारगेट ऑडियंस क्या कि ढूंढ के टारगेटिंग वगैरह करने में दैट इज गोना हेल्प दे। Okay, so stage 2 has to be this. So while your brand, trust, credibility is being built, locally क्या business generate कर, ये 2 stages होने के बाद थर्ड स्टेज में then your sales process, ठीक है? सेल्स प्रोसेस इवेंचुअली एलिमिनेट किया जा सकता है if your brand gets strong. आप सोचो अगर क्या कि आपका ट्रस्ट एक्सट्रीमली, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम स्टोरीज सुनते हैं, डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट मिलना है बहुत मुश्किल, वो भले 50 लाख 1 करोड़ रुपया ले सर्जरी के लिए, बट वो फिर भी बिजी है, उसका अपॉइंटमेंट मिलना है बिजी है, बट फिर भी लोग क्या कि जाएंगे वहां पे, कोई सेल्स प्रोसेस नहीं है बिकॉज credibility and trust is very high. So imagine if your credibility and trust goes to that level, then you wouldn't require a sales process. But currently, initially for the business conversion, because we do not have a brand in the market, we need to have a sales process. So that is where things like, आपके क्या कि स्टाफ की ट्रेनिंग की इंक्वायरी आ रही है, कैसे कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजों पे क्या कि दे नीड अ ट्रेनिंग एंड यू नीड टू हैव अ ट्रेनिंग ऑफ how do you convince patient psychological level say how do you ask them the right questions so that they move, it helps them move towards taking a decision or taking the procedure. ठीक है, वो ओपीडी पे आया, कन्वर्जन नहीं हुआ, तो कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ, देयर शुड बी सम रीजन। तो दैट मींस वो या तो ट्रस्ट लेके नहीं गया प्रॉपर, या तो उसको इनफ क्या समझ नहीं आता, देयर इज अ प्रोसेस मैप्ड आउट फॉर दैट वी नीड टू इंप्लीमेंट सो दैट द कन्वर्जन इंप्रूव।